So anyhow, we start with Qira'at Quran. I request Mr. Mustafa for the Qira'at Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah khair. Ladies and gentlemen and respected speakers from other countries and the staff and as well as the students of Indian Stars Grammar School, I welcome you on behalf of Civil Service Academy, Hyderabad. I am Mohammad Bashir Ahmed, General Manager. Welcome the staff, students, parents, and well-wishers of Indian Stars Grammar School, Hyderabad. I heartily welcome Janab Muhammad Saiduddin Sahab, is the founder of Civil Service Awareness Academy and is the president of CS. He is from Saudi Arabia by profession, who is an electrical engineer, settled long back in Jeddah, and inspiration for many organizations who work for the benefits of the society and the student community. We are implementing his ideology of spreading awareness of civil services at Hyderabad in different levels of education institutions. I welcome Engineer Saiduddin Sahab to his hometown in different form. I welcome you, sir, Janab Saiduddin Sahab from Jeddah, Saudi Arabia. Thank you. Thank you. I welcome today's motivational speaker, the world famous poet and as well as the columnist, translator, Janab Mehtab Khadr sir. And when I call him in proper way for the talk, I will introduce him in proper way, inshallah. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, our Civil Service Academy is a non-profit, non-political educational organization. It is a platform to create awareness regarding the importance of civil services among the students, parents, and in the community in general, and where mental potential of the youth is guided to blossom from amateur to professional level. Mr. Muhammad Saiduddin Sahab and his like-minded friends, Mr. Kareem Irfan from Kuwait, Abdul Khadir Sahab from Saudi Arabia, Engineer Abu Bakr Sahab, Saudi Arabia, Afsar Fahim Sahab from Sudan. They started this Civil Service Academy at Hyderabad on 15th August 2020. CSA is a platform which is dedicated to develop curiosity and zeal in the students to join civil services and become IAS, IPS, IFS officers and serve the nation and contribute their best talents to nation building. My dear students, the time has come to invite Sayyid Sarfaraz Ali Sahab. Sayyid Sarfaraz Ali Sahab is well-known poet known by his pen name, that is Mehtab Khad. He is from Jeddah and is a Urdu writer, poet and columnist. His books published, many books published, and from the poetry by name Chaun Seraki.
and prose, Safarnama, Awargi Thodi Si participated and presented papers in World Urdu Conference Jeddah 2008, and it was managed by Indian Consulate with Manu, Hyderabad. He participated in World Urdu Conference, NCPUC, Delhi, twice, in fact, that is in 2017 and 2018. I think most of the students are very familiar with the Urdu language. So we have a motivational speaker from Urdu background, Janab Mehtab Khadr Sahab. I request him. He can speak in the both language very well. In fact, it is up to him which language or mixer he can present in front of our students today. I request the world famous writer Janab Mehtab Khadr Sahab to present his motivation talk. Over to you, sir. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं सिविल सर्विस एकेडमी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस खिदमत का आगाज किया जिसे हमारी कौम और मिल्लत को जरूरत थी, और मुझे इस बात का एजाज बख्शा कि मैं आज इंडियन स्टार्स ग्रामर स्कूल के तलबा से मुखातिब हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, खास तौर पर जनाब सईदुद्दीन इंजीनियर साहब जो मेरे साथी हैं जद्दा के, और जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इस दफ़ा दोबारा फिर दावत दी और मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तारीफ में जो कुछ कहा गया है वो हो सकता है कि ज्यादा हो। मैं बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, हाँ शायर हूँ, और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में मैंने पेपर पढ़े हैं, इस हद तक ठीक है। बहरहाल मैं अपनी बारे में तफसील में गए बगैर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम वैसे भी चूंकि स्टार्स के नाम है, सितारों के नाम है, शाइनिंग स्टार्स के नाम है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तलबा और तालबात अपनी औकात में रहो, जितनी चादर है इतने ही पाँव फैलाओ। ये बुजुर्गों के कौल नहीं, बुज़दिलों के ख्यालात। ये बुजुर्गों के कौल नहीं, बुज़दिलों के ख्यालात हैं। कम हौसला रखने वाले, कुछ ना करने या न कर सकने वाले यही सोचते हैं। बिना अनथक मेहनत और गैर मामूली जुस्तजू के कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। दुनिया में आज तक जितने लोगों ने कारनामे अंजाम दिए हैं, उन्होंने रात दिन एक किया है, रात दिन मेहनत की है, जुस्तजू की है, अपने टारगेट और अपने टास्क पे की तरफ अपने आप को पूरी तरह मुनहमिक किया है, तब कहीं जाकर कोई गोल, कोई टारगेट पूरा हुआ है। कामयाबी मनोसलवा नहीं कि आसमान से आप पर नाजिल हो जाए। मनोसलवा बनी इसराइल पर आसमान से नाजिल होने वाले वो खौन थे जिसकी बनी इसराइल ने कदर न की। इस तफसील में हमको जाने की कतई जरूरत नहीं, लेकिन मनोसलवा एक अलामत है, एक सिंबल है इस बात का कि जो बैठे बिठाए घर बैठे लोगों को मिल जाया करता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे मत भागिए। जो रिवायतें मुरविज हो चुकी हैं, जो रास्ते तय किए जा चुके हैं, उनकी तरफ मत भागिए। अपना रास्ता खुद मुकर्रर कीजिए, अपना रास्ता खुद मुकर्रर कीजिए और नया दुनिया को नए ट्रेंड से वाकिफ करवाइए। ये ज़रूरी नहीं कि तालीम के मैदान में आप किसी खास मकतब से किसी खास सब्जेक्ट और मौजू पर आप मेहनत करें। आप जिस भी चाहे मौजू पर मेहनत करें और जो जिस रास्ते को भी अख्तियार करें उसको बामे उरूज तक ले जाइए, आसमानों तक पहुंचाइए, ताकि आपका नाम रोशन हो और आप स्टार्स बन सके। जो नाम आज आपके स्कूल का है उस नाम की कदर की जा सके और कहा जा सके कि ये इंडियन स्टार्स हैं जिन्होंने इस फील्ड को, इस मैदान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि आसमान पर चमकने लगे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये हम सब जानते हैं कि जब तुख्म बोया जाता है, बीज जमीन में डाला जाता है, तभी जाकर एक सरसब्ज पौधा और एक खूबसूरत पेड़ जन्म लेता है।
इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को अनथक मेहनत में लगाएं और 10 घंटे सोने वाले, रात भर जाग कर सुबह देर तक सोने वाले कभी कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। याद रखिए कि वही कौमें तरक्की पाती हैं जो सूरज से पहले जागती हैं और सूरज उनके बाद तुलू होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को इस बात पर राजी करें कि हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। स्टार्स के बारे में मैं अपना अपना मफहूम आपको बयान करता चलूं कि मैं स्टार को किन माना में लेता हूँ। स्टार, एस फॉर सिचुएशंस, यानी सूरत हाल। जिस भी सूरत हाल में आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में रहकर अपना टारगेट मुकर्रर कीजिए, टास्क मुकर्रर कीजिए, यानी अपना हदफ मुकर्रर कीजिए, टी फॉर टारगेट। और फिर उसके बाद उसके ऊपर अपना एक्शन प्लान बनाइए कि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करना है, इसके लिए एक्शन प्लान बनाइए। और देन आपको अपने पसंदीदा रिजल्ट्स हासिल करने हैं। और फॉर रिजल्ट्स, अपना पसंदीदा रिजल्ट्स हासिल करने हैं तो आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कोई फल भी बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम दिन रात मेहनत करें, अपना एक गोल मुकर्रर करें, अपने सिचुएशंस को कंट्रोल करके अपनी मेहनत के जरिए अपने हदफ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तभी जाकर आपको नताइज हासिल होंगे, वो नताइज जो आपके लिए भी पसंदीदा होंगे और आपके कौम के लिए भी और आपके खानदान के लिए भी अफसर ऊंचा करने का बायस बनेंगे। यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। आपने पिकासो का नाम सुना होगा। एक रशिया फ्रांस में रहने वाला एक स्पेनिश स्केच राइटर था, स्केच बनाता था, डिजाइन करता था। उसने वो एक मर्तबा अपनी एक एग्जीबिशन के लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक औरत से मुलाकात हुई। एक औरत ने उसे देखते ही कहा, आप पिकासो हैं? उसने कहा, हाँ मैं पिकासो हूँ। उसने कहा कि अगर आप पिकासो हैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आज आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपकी फैन हूँ, बहुत बड़ी कदरदान हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मुलाकात का कोई सबूत मुझे मिल जाए, आपके साथ मुलाकात का कोई सबूत मिल जाए। मैं जब अपने शहर वापस जाऊं तो लोगों को बता सकूं कि मैं पिकासो से मिल आई हूँ। इसके लिए क्या आपसे कुछ चीज चाहिए, वो ऐसी यादगार चीज जो मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने पिकासो से मुलाकात की है। इसके लिए मुझे आप क्या दे सकते हैं जिसके बुनियाद बुनियाद पर मैं ये साबित कर सकूं कि मैंने आपसे मुलाकात की है। पिकासो ने 30 सेकंड के अंदर एक स्केच बनाया और उसको दे दिया और कहा कि ये 30 सेकंड में बनाया हुआ स्केच 1 मिलियन का है। 1 मिलियन का ये स्केच है। वो औरत अपने हाथ में उस स्केच को पकड़ती है और सोचती है कि 30 सेकंड में अगर 1 मिलियन की तस्वीर बनाई जा सकती है तो क्यों ना मैं भी इसको बनाने की कोशिश करूं। वो घर जाती है, रात भर सोचती है, बड़ी बेचैनी और इस्तराब के आलम में उसकी रात गुजरती है। वो सोचती है कि मैं क्यों ना $1 मिलियन कमाने के काबिल बन जाऊं। सुबह जब एग्जीबिशन में वो पिकासो की आती है, उससे पूछती है कि क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे ये हुनर सिखा दें कि 30 सेकंड में किस तरह 1 मिलियन की तस्वीर बनाई जा सकती है। पिकासो का जवाब देखिए, बहुत ही काबिल गौर है और बहुत ही तवज्जो तलब है। वो कहता है कि 30 सेकंड की इस तस्वीर को बनाने में मेरी जिंदगी के 30 साल तजुर्बात का निचोड़ काम आया है। वाह। ऐसा नहीं कि 30 सेकंड में मेहनत, इसके पीछे मेहनत होती है। कोई भी किसी दरख्त को कोई फल लगता है तो उसके पीछे बड़ी लंबी मेहनत होती है। बीज बोने से लेकर पेड़ के समरदार होने तक एक लंबा अरसा होता है, जिसके बाद ये फल हासिल होते हैं। बुनियादी तौर पर इंसानी जिंदगी के सुधार और बिगाड़ में तालीम और तालीमी पस मंजर का बड़ा दखल होता है। तालीमी इंसान को हैवानी खसलतों से आज़ाद करवा कर इंसान बनाती है और ज़ेवर तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता करती है। जो कौमें तालीम में पीछे रह जाती हैं वो अक़वाम आलम में अपना मुकाम नहीं बना सकती। एक ज़माना था कि मुस्लिम और अरब उलमा ने साइंस और तिब के मैदानों में अपना मुकाम बनाया था और वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे जिससे आज भी मगरबी दुनिया फरामोश नहीं कर सकती। इब्न सीना की तिब्बी किताब कानून आज भी मेडिकल लाइब्रेरीज में कैनन की शक्ल में मौजूद है। उसे कैनन कहा जाता है, लेकिन ये कार नुमाया
ये मुसलमान तिब्बी तबीब इब्ने सीना की लिखी हुई किताब है, जिसे कोई मेडिकल लाइब्रेरी फरामोश या नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसी तरह 20 मिसालें हैं कि हमारे अजदाद ने इल्म और हिकमत से सुरखरुई पाई और आज हमारी नस्ल तन आसानी का शिकार व्हाट्सएप और दीगर जराए इबलाग को इल्म के हुसूल का जरिया समझने लगी है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम गूगल को बतौर हवाला बयान करते हैं, जबकि किताबों से दूरी ने नई नस्ल को जेवर तालीम से दूर और नजरियाती तौर पर बरहना कर दिया है। अब जिसको जो जी चाहे हमसे बावर करवाए। दहशतगर्दी और उम्मत में इंतशार भी तालीम के फुकदान का नतीजा है। जब हमारे जवान फिक्री सरमाए से खाली होंगे तो गुमराह कुन अफकार की यलगार उनके जहनों में आमाजगा बना देगी और इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है चश्मे आलम से पोशीदा नहीं है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसलिए जरूरी है कि हम उस तरफ तवज्जो दें जिस तरफ आज हमें ये सिविल सर्विस एकेडमी तवज्जो दिलाना चाहती है। कौम में हर इल्म के लिए मैदान खाली है, लेकिन जिन उलूम के हसूल के लिए आज ये एकेडमी काम कर रही है, मुझे फख्र से कहना चाहता हूँ कि ये इन मैदानों में आपको आगे बढ़कर हिंदुस्तान की और अपने मुल्क और मिल्लत की बागडोर संभालनी है। अगर आपने इन मैदानों में अपने कारनामे दिखाए, और याद रखिए कि कारनामे वही दिखा सकते हैं जिन्हें जुनून सवार हो किसी कुछ करने का। दुनिया में कोई अक्लमंद और अक्ल का सहारा लेकर कारनामा अंजाम नहीं दिया करता। जो भी कारनामे आज तक दुनिया में हुए हैं, चाहे वो साइंसी उलूम के जरिए हो, चाहे मजहबी मामलात के अंदर हो, वो सारे के सारे उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें उर्दू की इस्तिलाह में अहले जुनून कहा जाता है या दीवाने कहा जाता है। दीवानों ने दुनिया में कारनामे अंजाम दिए हैं। किसी भी मैदान में आपको पूरी दीवानगी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसके नतायज हासिल कर सकें और उस मैदान को सुरखुरु कर सकें और अपने आप को भी सरबुलंद कर सकें। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम तलबा से और तमाम इस शुरका से कि इन मैदानों की तरफ आगे बढ़िए ताकि IPS, IAS और IAFS की इंतजामी ओहदे आपके हाथों में हो और आप अपनी मर्जी से अपने मुल्क और कौम को सही डगर पर लाने के काबिल बन जाएं और सही रास्ता दिखा सकें। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाह रहा था कि इन मैदानों में आगे बढ़िए जिन मैदानों में कौम को जरूरत है, मुल्क और मिल्लत को जरूरत है। इन मैदानों में आगे बढ़कर अपने कारनामे नुमाया अंजाम दीजिए। मैं आपसे इसी दरख्वास्त के साथ रुखसत होता हूँ कि सही रास्ते चुनिए, सही मुकाम पैदा करने की कोशिश कीजिए। नया सफर है, नई मंजिलें बुलाती हैं। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। It shows your dedication towards the organization and as well as the youth. बच्चों, आपके लिए खासकर इतनी अच्छे स्पीकर्स को चुनकर लाया गया है ताकि आपकी जिंदगी बदल सके उनको देखकर। And he was talking to us and he was sharing his valuable knowledge with us. Let us pray Almighty Allah that he should not be in any problem. Inshallah. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Hats off, yes. Hats off. Yeah. Children, I remember, sir, जब बतला रहे थे कि हम चाहे जैसे भी हो, कैसी भी हालत में हो, देखिए आप सर भी he is in Saudi Arabia, he was traveling. Unfortunately, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहे आपके पास, आप सबको बुलाकर एक जगह इकट्ठा करके मैम सकीना मैम जो है ना अरेंज करते हुए आपको ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम सुनने का मौका दे रही है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 1 लाख का स्मार्टफोन नहीं है, 50,000 का नहीं है, 25,000 का नहीं है, मैं कहाँ बैठी हूँ, मुझे तो घर पे बैठकर वेबिनार अटेंड करना था या और कहीं बैठकर करना था। नहीं है, ये इनका जज्बा है। आई सैल्यूट द मैनेजमेंट ऑफ दिस आवर इंडियन स्टार्स को। इंशाल्लाह इसका फायदा आपको होगा। आफ्टर दिस webinar, your life is going to change. I don't mind if I have to sit on the floors of school
I don't mind if I have to sit on the floor of the school. I want an education and I am afraid of no one. Education is the power terrorists fear most. Malala Yousafzai. She said, मैं नीचे भी बैठा हूँ, बेंच पे बैठा हूँ, एक बेंच पे चारों बैठे हैं, इससे मेरे कोई लेना देना नहीं है. मैं एजुकेशन हासिल करने के लिए हूँ. एजुकेशन ये हथियार है, दुनिया में बड़े से बड़ा आतंकवादी उसे देखकर भाग जाता है. आई सैल्यूट यू. आपने टाइम निकालकर इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए उनके ऊपर रहम आता है. इंशाल्लाह मैक्सिमम बच्चे तो अटेंड किए होंगे. आई सैल्यूट यू एंड एज वेल एज आई विल कंग्रेचुलेट यू दैट मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलने ही नहीं. आप निकले और ध्यान से हमारे स्पीकर्स को सुन रहे हैं. माशाअल्लाह, वेरी गुड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Ladies and gentlemen and my dearest students, girls and boys, now the time has come to welcome Janab Muhammad Saiduddin Saab, the founder father of this organization, and one person with a divine purpose, passion and power is better than 99 people who are merely interested. Passion is stronger than interest. इन्होंने ही स्टार्ट किया था सिविल सर्विस एकेडमी अपने साथियों के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 70 तक पहुंचे हुए हैं. अभी तक लाखों बच्चों को मोटिवेट करते आ रहे हैं. इंशाल्लाह आपका ऑर्गेनाइजेशन भी इसका फायदा उठाएगा और आप में से कुछ लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बनकर इंडियन स्टार्स, सचमुच के इंडियन स्टार्स कहलाएंगे और इंडियन स्टार्स ग्रामर स्कूल का नाम जरूर रोशन करेंगे. By these beautiful words, I welcome to present the main topic of the day about the civil services. Janab Muhammad Saiduddin Sahab, all you want to know about civil services, over to Janab Muhammad Saiduddin sir. Sir, please sir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to the Indian Star Grammar School students. बच्चों, आप लोग जो स्कूल में है, माशाल्लाह, इट्स अ वंडरफुल स्कूल एंड यू आर डूइंग, आप लोग अच्छी जगह पढ़ रहे हैं. ये अल्लाह ताला की आप पे जो है बड़ी मेहरबानी है that you have got admission in this school, and we appreciate the management of the school for giving us this opportunity to present to you civil services webinar. तो बच्चों, आज जो हम जो सिविल सर्विसेज के बारे में जान रहे, ज्यादा जानेंगे अपन क्या है, कैसे करना है इसको. सिविल सर्विसेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये सिविल सर्विस एकेडमी हम हैदराबाद में बनाया है. इसका बेसिक पर्पज यही है कि सिविल सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जनरली जो है हमारी कौम, हमारे बच्चे जो है इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसकी वैल्यू नहीं जानते और इसमें करना नहीं चाहते. इसके बारे में कई शुबूक और कई शुबहात है और कई डर है बच्चों को, जिसमें सीएस करना बोले तो वो लोग इंजीनियरिंग मेडिसिन तो करना चाहते, लेकिन सिविल सर्विस के बारे में नहीं सोचते. तो आज हमारा पर्पज ये है कि आप सिविल सर्विसेज के बारे में तारुफ कराएं और इसको करने की ख्वाहिश आप लोगों में पैदा करें. ये हमारा मकसद है. सिविल सर्विसेज जो है कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज. और सिविल सर्विसेज है जैसा कि जो है घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के कोई बल्ब और कोई इक्विपमेंट नहीं चलता, इसी तरह सिविल सर्विसेज अगर ना हो तो गवर्नमेंट नहीं चलती. तो ये आपको बताना है. सिविल सर्विसेज इसका मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जिस्म में जो है, आदमी के जिस्म में जिस तरह ब्लड का काम है, उस तरह जो है सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट और इंडिया को रेगुलेट करने में उसका काम रहता है. इसलिए सिविल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो सिविल सर्विसेज करते लोग जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जाते और वही कंट्रोल करते. हम लोग सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने जो है हमें इंसान बनाया, हमें जो है एक एंट एनिमल नहीं बनाया. और ये बैलेंस वर्ल्ड में जो बैलेंस है वो जो अल्लाह ताला के प्लान के मुताबिक है. इस लिहाज से हम सबको अपना एक प्लान होना चाहिए, हर एक चीज में एक होना चाहिए. इसलिए में ये कहा जाता है कि इफ वन फेल्स टू प्लान, ही इज प्लानिंग टू फेल. अगर हम प्लान नहीं करें, हम जो भी काम करने वाले पूरा दिन जो बचा हुआ है उसको हम किस तरह गुजारना है, दूसरा दिन, एक साल कैसा गुजारना है, 5 साल अगले कैसा गुजारना है, ये सबका जो है हमको प्लान करनी चाहिए. अगर ये प्लान नहीं करें तो मतलब है कि हम फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं. अब आपने देखा होगा कि
अपने जितने भी मजाहब हैं इंडिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इस सब में क्या है, आवर गॉड इज ओनली वन, आवर क्रिएटर इज ओनली वन। हम जो है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ शिर्क नहीं चाहिए। एसोसिएटेड पार्टनर्स विद हिम इज कॉल्ड शिर्क। शिर्क जो करता है वो सीधा जहन्नम में जाता है। तो हम सबको जो है शिर्क से बचना चाहिए और ऑलवेज टू स्टैंड बाय ट्रुथ, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, एंड सपोर्ट एंड डू जस्टिस इवन इफ इट इज अगेंस्ट यू, योर पेरेंट्स एंड डियर वंस। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए, बताइए समझ में आ रहा है तो बताइए, हाथ उठाइए। इफ यू सी एन इनजस्टिस, एक हदीस शरीफ है उसका मफहूम ये है, इफ यू सी एन इनजस्टिस बीइंग डन स्टॉप इट बाय हैंड। अगर कोई जुल्म हो रहा तो आप जो उसको हाथ से रोको, अगर नहीं तो कम से कम जबान से रोको। ये भी नहीं कर सकते, कम से कम बुरा दिल में बुरा समझो, ये आपके सबसे निचला दर्जा है। What makes human beings different from animals? बच्चों क्या हमको डिफरेंट करता है एनिमल से? That is the ability to think and communicate. हमारी सोचने की सलाहियत और बोलने की जो सलाहियत है, इसकी वजह से हमको जो है अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। यानी सारी दुनिया में जो है इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, तो सबसे अच्छा जो नोबलेस्ट ऑफ क्रिएशंस है। Importance of education. The first word revealed of the Quran was Iqra. Iqra माने read, seek, educate yourself, be educated. Education is not only the right, but it is a duty of every male and female. The best gift from parent to his child is best education. और ये आप लोगों को मिल रहा है। Education is the passport for the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा इनाम हम सबको क्या है? टाइम है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। God has given us many blessings, made us human beings, gave us sound health, thinking mind and peaceful life. God has created us in self parts of his body for money. बच्चों किसी को कहा कि तुम्हारा हाथ दो, मैं रुपए देता हूँ, हाथ दो मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूँ, कोई देगा? बच्चों हाथ उठाइए, देते क्या कोई? अगर इस हर पार्ट का कोई वैल्यू अगर लगाए तो आप जो है अपने आप में आपका अपना जिस्म जो है वो 1 करोड़ 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 की कीमत का हो जाएगा। तो ये सब रख के जो है अपने आप को गरीब महसूस करना, अपने आप को कमजोर महसूस करना, ये हमारी नादानी है। अल्लाह ताला ने इतना सारा कुछ, इतनी वैल्यूबल है। आप देखिए, द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स इन लाइफ इज टाइम, बिकॉज टाइम यू कैनॉट बाय नॉर बोरो इट नॉर यू कैन स्टील इट फ्रॉम अदर्स। टाइम जो है ना किसी से आप ले सकते, ये एक बार गुजर गया तो खत्म, इसका वैल्यू खत्म हो जाती। Therefore, time management is most important for success in this life and in the hereafter. तो टाइम को बच्चा किस तरह यूज करना मैं वो बता रहा हूँ आपको। टाइम को यूज करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपके जितने काम करने वाले हैं वो टास्क जो है आप पेपर पे लिखना चाहिए। हर दिन आपको लिखना चाहिए कि मेरे को दूसरे दिन क्या क्या काम करना है, पूरी लिस्ट बना लेना चाहिए। कल क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, क्या, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बना लीजिए। उसके बाद में उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ABC, ए ऐसे काम है जिनको करना बहुत जरूरी है। B उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट। C सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, जिसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये जो है टास्क लिस्ट बना लीजिए। एवरी डे यू शुड मेक टास्क लिस्ट। दूसरे दिन के टास्क जो है आपको लेना चाहिए और उसमें ABC कैटेगरी करना। और जब दूसरा दिन आता है तो पहले कौन से काम करेंगे आप? A कैटेगरी के काम करेंगे, उसके बाद में B कैटेगरी के काम करेंगे, उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट C कैटेगरी के काम करेंगे। So this is the way you can achieve, you can perform you can utilize your time properly. Value of time. बच्चों हर एक आदमी के पास 24 आवर्स ही है, मगर आप देखोगे कई बिलियनर बन जाते, कोई करोड़पति, कोई भिखारी बन जाते। क्यों? बच्चों समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल गेट्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। बच्चों रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ है। उसने कहा कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर फॉल्ट। पैदा होना आपका जो है आपकी गलती नहीं है, मगर अगर गरीब मरे आप तो जो है ये आपकी गलती है। इसका मतलब ये कि आपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आप गरीब मर रहे। तो इस लिहाज से जो है हम सबको टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो हमको अपॉर्चुनिटी दी है इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल गेट्स की रोज की आमदनी है 122 करोड़ रुपए, रोज की आमदनी है पर डे। तो बच्चों जब बेजोस अमेजन का जो ओनर है 234 करोड़ ए डे, एक दिन की आमदनी है उसकी 234 करोड़। बच्चों आप लोग देखिए कितना कमाना चाहेंगे बोलो? वो भी जो अच्छा ये लोग कैसा कमाए? ये सब इन सब के लिए भी 24 आवर्स ही थे, पर डे दे हैड ओनली 24 आवर्स। सो इस तरह बच्चों आप लोगों को भी अपनी कंपनी बनाना चाहिए,
अपनी जो है एक बिजनेस बनाना चाहिए और आप लोग प्लान करना चाहिए कि आप लोग जो है नहीं करें तो आपको आमदनी आती रहे। इस तरह का जो है आप लोगों को प्लान करनी चाहिए और जो करने की इरादा रखता उसी को करने की सलाहियत मिलती है। अल्लाह ताला जो है उसकी सलाहियत देता है काम करने के लिए। बच्चों, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गोल होना चाहिए। और गोल क्या है? हैव ए गोल इन लाइफ। और गोल कैसा होना चाहिए? गोल जो है स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट किसको बोलते हैं? एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइम बाउंड। अरे ये जनरल बात नहीं करना चाहिए कि मैं पैसे खूब खूब पैसे कमाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बल्कि मैं 10,000 रुपए कमाना चाह रहा हूँ या 10 लाख कमाना चाह रहा हूँ या 1 करोड़ कमाना चाह रहा हूँ। इस तरह नंबर स्पेसिफिक होनी चाहिए और ये मेजरेबल होना चाहिए। यानी लगना चाहिए कि कितना है, ये वैल्यू क्या है इसकी। और ये अचीवेबल होना चाहिए। आप जो है 10 रुपए नहीं कमा रहे, आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो कोई यकीन नहीं कर सकता, वो अचीवेबल नहीं रहता। अब 10 रुपए कमा रहे तो आप 1 लाख कमाने की कोशिश करना चाहिए और ये रियलिस्टिक होने चाहिए। हर बच्चों, हर एक का एक गोल होना चाहिए जिंदगी में। अचीव क्या करना चाह रहे आप जो है बिल्कुल जिंदगी के बिगिनिंग में, यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, यू वांट टू बिकम लाइक बिल गेट्स, जेफ बेजोस, और यू वांट टू रिमेन इन डेट। आप लोग क्या कर्ज में रहना चाहते हैं या आप लोग भी जो है उनकी तरह पैसे वाले बनना चाहते हैं? द डिसीजन इज योर। हम लोग यहाँ पे आप लोगों को रास्ता बता रहे, टिप्स दे रहे हैं किस तरह आप लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप बिलियनेयर बनना चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं। जैसा कि देखिए कोटेशन है, सी सेम फॉर ऑल, सम टेक पर्स, सम टेक फिश, सम कम आउट विथ वेट लेग्स। यानी समंदर में जो डूबता है, डूब के जो है बाद लोग मोती निकालते, बाद लोग जो है मछली निकालते और बाद लोग जो है कच्चे जिस्म से बाहर आते। तो बच्चों, आप लोग जो है इसी तरह जिंदगी आप लोगों के सामने खुली हुई है, दुनिया पूरी खुली हुई है। ये आपके ऊपर है कि आप दुनिया में क्या कमाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो जो कोशिश करेगा उसको मिलेगा। लाइफ इज कॉमन फॉर ऑल, वी गेट व्हाट वी ट्राई फॉर इट। जो कोशिश करेगा, जितनी कोशिश करेगा उसको वो चीज मिलेगी। सम मोटिवेशनल कोट्स, इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। यानी गोल हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। आज जो गोल आप बनाए हुए जिंदगी भर उसको याद रखिए, उसकी तरफ काम करना चाहिए। अगर गोल करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस प्लान को चेंज करना चाहिए, अगर गोल चेंज नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय योर एनिमीज बाय मेकिंग देम योर फ्रेंड्स। इन सक्सेस, कामयाबी में 1% इंस्पिरेशन, 99% इज परस्पिरेशन। इसका मतलब है कि जो मेहनत करता, हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, टाइड टू ए गोल। हर आदमी जो खुश रहना चाहता है उसको एक गोल बनाना चाहिए और इट शुड नॉट बी लिंक टू पीपल और ऑब्जेक्ट। अवॉइडिंग फेलियर इज अवॉइडिंग प्रोग्रेस। यानी जब आप किसी काम करेंगे तो आप कई मुश्किलें आते हैं, आप उनको दूर करनी चाहिए, उनको उनको उनसे उनके ऊपर उबूर हासिल करके आप जो है अपने गोल की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया कि इज ए इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ऑल डिपार्टमेंट हेड्स टुगेदर विद देयर स्टाफ फॉर्म द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो हैदराबाद तक जितने लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं सारे लोगों को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी में ये जो है दुनिया, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो है ये लोग इंटरफेस रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी ड्राफ्ट बिल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस अप्रूव दैट। ये लोग प्लान बनाते और जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोग इसको अप्रूव करते हैं। बाद में ब्यूरोक्रेसी में जो प्लान से ये लोगों को बताते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली ऑल हेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर अपॉइंटेड फ्रॉम सिविल सर्विसेज who have passed IAS, IFS, IPS। दोस्तों, आईएएस का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईपीएस इज इंडियन, आईएफएस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। ये सारे लोग कैसा आते? ये जो यूपीएससी का एग्जाम देते, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम कंडक्ट करती, वो एग्जाम में जो पास करते हैं वो जो है ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते। ये क्लासरूम है जिस तरह आप लोग बैठे हुए, और एक टीचर है जो पढ़ाते हैं और एक हेडमिस्ट्रेस है जो स्कूल को मॉनिटर करते, कंट्रोल करते, और ये जो है डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। ये सारे स्कूल को कंट्रोल करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद जो है ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है। ये लोग जो है पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, गवर्नर्स को जो एडवाइस देते हैं। और यही लोग हैं जो यूपीएससी करके आते, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो करके आते, ये वही लोग हैं जो वहां पे गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। डिपार्टमेंट में अगर आप ले लें तो सबसे निचले तबके पे कौन रहता है? एक पुलिस कांस्टेबल की तरह ज्वाइन करता कोई आदमी, उसके बाद में वो जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनता, और सबसे ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता। तो दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो बच्चों, आप लोगों को मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तेजी से आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए?
उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिंदगी में हर लेवल पे देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। जैसा कि आप लोग स्कूल में तकरीबन 34 किस्म के आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है। इसके अलावा जो है अभी जो है आपके स्कूल के मैनेज आई लाइक टू ड्रा देयर अटेंशन आल्सो, प्लीज are you preparing for this to the children? There are so many competitive exams available in the school level. 34 types of school competitive exams available है बच्चों। आप लोगों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके इसमें पास होने चाहिए। जो एग्जाम से पास करते हैं वो लोग जो है लाइफ में फास्ट जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको एक शॉर्टकट इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ऑन द लेफ्ट साइड देखिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। एक आदमी पुलिसमैन की तरह ज्वाइन करता है, उसको 5 to 7 years के बाद ही बिकम्स इंस्पेक्टर, और उसके बाद में 5 to 7 years के बाद ही बिकम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद में 7 to 10 years के बाद ही बिकम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये जो पोजीशन है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में, एक लड़का जो ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देता है, डायरेक्टली वो जो है राइट साइड पे देखते हैं एग्जाम के बाद डायरेक्टली ही बिकम्स एसपी, यानी 20 to 25 years जंप करता हो। तो दिस इज कैन कम अप फास्ट इन लाइफ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। You are in such competitive world. Your reading books doesn't give you sufficient knowledge to face the current scenario of challenges in the present rapidly changing world. यानी बच्चों ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये जो है सिर्फ आपको हार्ड स्किल्स तैयार कर रहे हैं आप लोग, जो मैथमेटिक्स साइंस जो पढ़ रहे हैं। मगर इसके लिए आपको क्या है, इसके अलावा जो है आप लोग करना चाहिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपका जो हिडन टैलेंट है आप लोगों का वो सामने आता है। आप लोगों को इनोवेटिव बनना है, नई चीज ईजाद करना, नई चीज सीखना चाहिए, हर दिन नई चीज सीखना चाहिए आप लोगों को। एंड मेरिटोरियस चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल टैलेंट्स आर अप्रिशिएटेड विद स्कॉलरशिप, मेडल्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्स अवेलेबल है। मैं आपको तीन टाइप के एग्जाम आपको बताने वाला हूँ अभी। एक जो फर्स्ट लिस्ट एग्जाम है, ये जो आप क्लास 12 से पहले दे सकते हैं, यानी अभी स्कूल लेवल पे जब है एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। और ये दूसरी जो लिस्ट है ये आफ्टर 12 देने के एग्जाम्स हैं। और थर्ड लेवल पे आपको मैं ग्रेजुएशन के बाद जो देने के एग्जाम्स है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये जो है ये एग्जाम जो है ना, आपके एग्जाम यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं और 28 और एग्जाम है इस तरह के। ये एग्जाम्स आप लोग जो है ये स्कूल लेवल पे दे सकते हैं आप लोग। ये मैं आई वुड लाइक द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल टू नोटिस दिस एंड दिस एग्जाम शुड बी। आप लोगों ने सुना है एमटीएससी का एग्जाम, आप लोगों ने सुना है कोई ने? ये एनटीएससी का एग्जाम एक होता है जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे होता है। जो एग्जाम इसकी प्रिपेयर करता है वो यूपीएससी के लिए ऑटोमेटिकली ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बिकॉज इसमें जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसी तरह के होते हैं। और इसी तरह देयर आर नेशनल साइंस ओलंपियाड है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड है और जूनियर साइंस इंग्लिश मैराथन है। ये सारे एग्जाम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट से आप लोग पूछिए और ये एग्जाम्स अवेलेबल है, गूगल वगैरह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसका। इसके हर दिन जो इसका अनाउंसमेंट होता है, इसके डेट्स आते हैं, इसके लिए तैयारी करके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस देता और यूपीएससी की ऑटोमेटिक आपकी तैयारी होती। ये जो एग्जाम्स है ये इंटर के बाद करने वाले एग्जाम्स है, जैसा जेई एडवांस है। ये एग्जाम्स जो है आईआईटीज और एनआईटीज में करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए है। और जैसा एमसेट जो करते हैं अपन इंजीनियरिंग करने के लिए एमसेट करते हैं स्टेट लेवल पे, उसी तरह के एग्जाम्स है ये। और ये एम्स जो देख रहे हैं आप थर्ड लेवल पे जो एम्स है, और जिपमैट बोल के एग्जाम है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस। ये मेडिसिन करने के लिए नीट एग्जाम आपने लोगों ने सुना होगा। ये जो है ना मेडिसिन और मेडिकल साइंसेस करने के लिए एग्जाम है ये। जो इसमें पास करता है, जो पार्टिसिपेट का, उसी को जो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये सब जो कोर्सेज करने की सहूलत रहती। और बिग साथ रहता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी इंजीनियरिंग करने के लिए है। तो इस तरह के ये जो एग्जाम, इसके लिए अभी से आप लोगों को चूज कर लेनी चाहिए कि मेरे को इंटर के बाद क्या करना है। अभी आप लोगों को सोचना चाहिए, ये नहीं कि मैं इंटर के बाद सोचूंगा क्या करूंगा। वो इस तरह है जैसा कि कोई आदमी एयरपोर्ट पे जाके क्या कौन से प्लेन में जाऊंगा उसको पता नहीं, तो उसके बारे में क्या सोचेंगे आप। तो घर से निकलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से प्लेन में बैठने वाले हैं, किधर जाना है आपको। और ये जो एग्जाम से बच्चों ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये जो है यूपीएससी की तरह कंडक्ट किया जाता। और यूपीएससी के करने के आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। इसके अलावा 22 अदर आईलेट सर्विसेज में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको अभी से आप लोग टारगेट करके इसकी तैयारी कीजिए। जो इसकी तैयारी करता है वो अगर इसको मिल जाए तो ये जो है अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाता है।
अगर ये नहीं मिला तो ही कैन डू अदर एग्जाम। अगर आपको यूपीएससी में अगर चांस नहीं मिला तो यू कैन अपीयर फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी एक एग्जाम है जो इसके बाद आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करे तो आप स्टेट लेवल पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो कर सकते हैं। ये इसमें जो है ना, ये थर्ड देखिए यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज रहते हैं, ये एग्जाम भी कर सकते हैं आप। ये जो है दूसरा है सीक्रेट ऑफ फास्ट ट्रैक ग्रोथ फॉर ग्रेजुएट्स। आप ग्रेजुएशन के बाद अगर ऊपर आना है तो ये एग्जाम से आपको ऑन द लेफ्ट साइड देखिए आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें जो आईएएस आईएफएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। ये सालाना 900 से 1200 पोस्ट होते सिर्फ इसमें, यानी 1000 में एक बच्चा सेलेक्ट होता है इसमें। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है, मगर जो करता है उसके लिए इज्जत भी मिलती है, उसको पैसा भी मिलता है। तो ये जो है सबसे हार्ड एग्जाम है और इसकी तैयारी करना बहुत अच्छा है। हम लोग आपको यही तैयारी कराने के लिए तो ये तरीका अगर चांस नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में दे सकते हैं, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। ये 20 to 25,000 पोस्ट रहते हैं इसमें। ये भी जो है आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी का जरिया बनता है, इसमें भी गजेटेड ऑफिस बन सकते हैं। और अगर ये भी नहीं मिला तो आपका थर्ड लेवल पे स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं, जिसमें 100 to 150,000 ओपनिंग होते हैं हर स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये 3 लेवल के एग्जाम है जो आप जो है आपके ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये आईएएस के लिए आपके क्वालिफिकेशन क्या होना मालूम, यू शुड बी इंडियन नेशनल एंड यू शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज एंड यू शुड बी ग्रेजुएट। और बच्चे जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन अपीयर फॉर दिस। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो आप लोग तैयारी कीजिए आप लोग इंशाल्लाह। और बच्चा इन इंडिया हु रूल्स द नेशन, it is not the president, not the prime minister, not the ministers, not the governor or chief minister. Then who rules? Actually, more than 90% of policy formulations and decision making is done by the bureaucracy. यानी जो बच्चे यूपीएससी कर लेते हैं, जो आईएएस बनते हैं, वो लोग करते हैं। ये जो लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये यूपीएससी आईएएस करी हुई लड़की है। और इंशाल्लाह आप लोग भी इस जगह बैठ सकते हैं एक दिन, अगर आप लोग तैयारी करें और यूपीएससी का एग्जाम पास करिए तो आप भी इसी जगह बैठ के आप लोग भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बना सकते हैं, जिससे आप लोग जो है गवर्नमेंट एक्चुअल चलाने वाले आप ही लोग होंगे। एंड मुस्लिम कम्युनिटी इज लैगिंग बिहाइंड दिस। ये सब में जो है मुसलमान जो है बहुत पीछे हैं। आप अकॉर्डिंग टू सेक्टर कमेटी ओनली 3% इन आईएएस, 1.8% इन आईएफएस एंड 4% इन आईपीएस। ये बच्चों ये बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है बहुत वीक है। हम आप चाहते हैं कि आप लोग जो है इसमें मेहनत करके आगे बढ़ें और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट हो जाएं और कामयाब हों। तो जिससे जो है ये पावर कारिडार्स होते हैं, यहाँ पे रहने से आपको पूरे पॉलिसीज मालूम होते हैं और हमारी तरक्की का रास्ता यहीं से मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 4.5% इन इंडियन रेलवेज एंड उसमें भी जो है 98% जो है लोएस्ट लेवल पे रहते हैं। और बैंक्स और यूनिवर्सिटीज में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और सिक्योरिटी एजेंसीज में वी आर ओनली 4% और मिलिट्री में ओनली 1%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हमारे लोग जाते नहीं, दूर से लोग जाते हैं और उनकी रेस्पेक्ट होती है। और बट आवर शेयर इन द प्रिजन्स इज 25%। अनफॉर्चुनेटली जेलों में हमारा परसेंटेज 25% है और बेगर्स में 20% है। बच्चों ये बहुत बड़ी आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि सारे लोग मांगने वाले मुसलमान हैं। तो ये लोग उनको अपना अर्निंग करने की तरफ हम उनको तरगीब देना चाहिए। बच्चों ये बहुत बड़ा हमारे पे जिम्मेदारी है, जो भी पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को पढ़ाए और उसको जो है काबिल बनाए। इन नो स्टेट डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन मैच देयर पॉपुलेशन। बच्चा आप लोगों को पता है इंडिया में हमारा पॉपुलेशन कितना है, मुस्लिम का पॉपुलेशन इज 15%, बट वी आर पार्टिसिपेटिंग ओनली 3 to 4% ओनली आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जाम। बिकॉज ऑफ दैट आवर परसेंटेज इज वेरी लो। All our bright students are going in one direction. All of them are opting for engineering or medicine, not going to other fields such as IAS, IPS, CA, business management, finance, corporation, military and media, etc. ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें भी जो है हर एक आदमी की जरूरत है, प्रोफेशन की जरूरत है। और इसमें नहीं जाने की वजह से हम लोग जो है बहुत वीक है, हमारी कम्युनिटी इज वेरी वीक। टुडे लायर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट injustice, but you find very few liars in the lower courts and higher courts. There is lack of presence in media industry and we are very weak in the financial dealings. Media today is creating havoc by wrong propaganda due to absence of our people. Muslims and community are shown in bad light.
in general, we have diverse the government and government jobs, and in it our presence is very low. As a result, we are far away from the corridors of power. Consequently, we have become powerless. बच्चों, आपने देखा होगा कि कई डिपार्टमेंट में एक प्यून और टी बैग ही नहीं रहता मुसलमान. As a result, we do not know what decisions are being taken and what policies and projects are being planned. तो बच्चों, ये डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना, इसमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिए, सबकी ख्वाहिश यही है कि ग्रेजुएशन कर लो और बाहर चले जाओ. तो दैट इज नॉट द अर्निंग. उसमें जो है आपका स्ट्रेंथ नहीं रहती. जो लोकली आप अर्न करते, जो लोकल वहां पे जो आप अपना एस्टैब्लिश करते, वो आपके लिए सही फाउंडेशन रहता. So we should try to establish ourselves in their government in India. We come to the stage of this implementation. Then if we react, which gives bad negative opinion about our behavior. बच्चों, आज जो है ना, अगर सिविल सर्विस सिस्टम को आना है तो इसमें जो है ना, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है एंड जो ग्रेजुएशन करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में IAS UPSC का एग्जाम लेना चाहिए. तभी जो है ये हालत बदल सकती है. आजकल जो है 10 लाख बच्चे इसमें जो है अप्लाई कर रहे हैं. तो अब इस साल जो है 20 लाख एक्चुअली. तो उसमें जो है तकरीबन 3 लाख बच्चे मुसलमान होने चाहिए, जहाँ पे नहीं हो रहा. हमारे लोग नहीं पढ़ रहे, इसमें नहीं जा रहे, एग्जाम डरते रहते. तो ये देखिए, in last 74 years, we have not produced 7 IAS from Hyderabad. Although we have got great talent, there is lack of awareness, importance of IAS in our community, and there is no passion to take up this exam. हमारे बच्चों में इस करने की ख्वाहिश नहीं है एक्चुअली, समझते नहीं IAS की क्या इंपॉर्टेंस है. In addition to that, in reality there are several, कई हमारे जहनों में जो है ना, कई डर हैं, कई खौफ हैं और कई अशकाल हैं, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी एग्जाम की तरफ नहीं जाती. वो क्या है मैं बता रहा हूँ. हमारे लोग क्या सोचते, हमारे लोग सोचते कि ये इज अ वेरी टफ एग्जाम और इट टेक्स वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन. जनरली मुसलमानों को ये नहीं दिया जाता. फॉर्मेट ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्लिकेटेड, नो गारंटी ऑफ सिलेक्शन, ओनली चिल्ड्रन ऑफ रिच पीपल आर सिलेक्टेड, remuneration is very low in the government services. बच्चे इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे जहनों में रखे हुए हमारी कम्युनिटी में. आप किसी को बोले बच्चे क्यों नहीं कर रहे, आप नहीं साहब हमको नहीं देते, हम मुसलमान है ना, हमको नहीं मिलता ये काम. ये बिल्कुल गलत है बच्चों. अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि कितने मुसलमान है जो न सिर्फ पास करे बल्कि टॉप करे. ये देखिए, इसी तरह के ये भी है, नो वन पासेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 30 to 40% बच्चे जो पास होते हैं ये फर्स्ट टाइम में वो लोग तैयारी करके पास करते. तो देयर इज नो लॉन्ग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स इट इज लॉन्ग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है, जिसके लिए प्रिपरेशन भी आपको लॉन्ग करना पड़ेगा. तो अगर जो बच्चे जो है अच्छे पैशनेट ये इंस्टीट्यूट हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों को फ्री कोचिंग देते हैं IAS के लिए. आप लोग ग्रेजुएशन के बाद ये इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी तालीम और पढ़ाई और कोर्सेज पूरे जो है फ्री में मिलते हैं आप लोगों को. तो ये नहीं जो है पैसे होना चाहिए, पैसे वालों के बच्चे जाते हैं, गलत है. ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप UPSC इजीली ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसा मानू हैदराबाद में इदारे हैं जो है अच्छे बच्चों को तालीम के लिए मदद करते हैं, और आप लोग फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं. और बच्चों, ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप लोग जो पिक्चर है, ये जो है अंसार शेख फ्रॉम महाराष्ट्र है. ये लड़का जो है सन्ना पे ऑटो ड्राइवर है, एंड ही पास द UPSC एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 21 years, एंड ही बिकम यंगेस्ट IAS ऑफिसर. और उसी तरह देखिए, ये जो लड़की है ऑन द राइट साइड टॉप पे, टीना दादी इसका नाम है. ये 22 years में UPSC टॉप करी है. शेड्यूल कास्ट की बच्ची है, ये जो ST SC बोलते ना, उसकी बच्ची है ये. और ये बच्ची जो है 22 years में टॉप करी है IAS. और ये जो नीचे देख रहे हैं, ये सफीन हसन खान है, ये यंगेस्ट IPS ऑफिसर फ्रॉम गुजरात है. ये बच्चों ऑन द लेफ्ट साइड देखिए आप, तो अतर आमिर खान है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है फ्रॉम कश्मीर CSC 2015 में. ये सेकंड बीच में जो देख रहे हैं अंकुर है, ये फर्स्ट रैंकर है UPSC एट द एज ऑफ 22 years. ऑन द राइट जो देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर बुशरा बानो है, शी इज मदर ऑफ 2 children, शी पास UPSC. तो लोग देखिए, अपने शादी हो गई, मैं कैसा करूं, बच्चे हो गए कैसा करूं, बच्चे लगल. ये लड़की जो है 2 बच्चों को रखते हुए UPSC का एग्जाम पास करी है. हम लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं आप, जुनैद अहमद है, ये 3rd रैंक हासिल किया इन 2018 UPSC के एग्जाम में. तो बच्चे ये कहना है कि मुसलमानों को नहीं देते, ये नहीं है. बच्चे नॉट ओनली पास किए बल्कि टॉप करें. उसी तरह देखिए, ये बच्चा देखिए ऑन द लेफ्ट साइड देखिए आप, ये अभी रिसेंट पिक्चर है. ये हिस्ट्री ऑफ नेशनल आफ्ताब है, ये फ्रॉम ओडिशा है. ही पास नीट एग्जाम
he scored 720 out of 722, first time in the medical history. NEET exam, first time he scored so much. On the right side, you see Ansar Sheikh, youngest IAS officer, and Safin Hassan Khan, IPS, youngest IPS. तो सारे बच्चे देखिए कौन है, ये सब मुस्लिम बच्चे हैं सब. So they could achieve, you cannot achieve, why you cannot achieve this, you can also achieve it. So you should have plan, you should have goal, you should work for it. ये लड़की देखिए हिजाब में रह के ज़ैनब सैयद, she is from Bengal, she scored highest marks in UPSC. तो बच्चों आप लोगों को जो है फार विजन रखना चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए, न सिर्फ अभी की आज की नहीं बल्कि अगले साल की, अगले 10 साल की, अगले 100 साल की, अगले 200 साल की आपको जो है फिक्र रहनी चाहिए. यू शुड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू टुमारो? कल आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों के पास प्लान है? प्लीज थिंक अबाउट इट. व्हाट आर योर प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर? व्हाट आर योर प्लान फॉर इन नेक्स्ट 10 ईयर? तो ये जो है अभी से आप लोगों को सोचना चाहिए, ना कि आप लोग जो है 10th पास करने के बाद सोचूंगा, इंटर के बाद सोचूंगा. ये गलत बात है. You can choose what you want to be. You can become future of India if you plan and work for it. अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिकुम. Indeed, Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहते, अल्लाह ताला हमारी हालत नहीं बदलता. तो बच्चों आप सब अपनी कोशिश करेंगे ना? आप लोग सिर्फ कोशिश करेंगे बच्चों? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बल्कि हाथ उठाइए आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अभी जो एग्जाम आने वाला है यूपीएससी का, इसकी ये तारीख है 3rd. ये देखिए सेकंड कॉलम में देखिए आप, 2 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर द पीपल हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जाम. जो ग्रेजुएशन कर लिए या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, उनके लिए है ये. दिस इज दे कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्जाम बिफोर 3rd मार्च 2nd मार्च. एंड यू नो यूपीएससी का एग्जाम जो है वो 3 लेवल पे होता है बच्चों. यूपीएससी का एग्जाम जो होता है वो 3 लेवल पे होता है. फर्स्ट लेवल है प्रिलिमिनरी, उसके बाद में मेंस एग्जाम होता है, इट इज फॉलोड बाय इंटरव्यू. ये 3 जो पास करते हैं, तीनों में जो है 2060 मार्क्स रहते हैं. जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल करे उसको आईएएस का जॉब मिलता है. तो बच्चों ये 3 लेवल के लिए आप लोगों को तैयारी करना है. अभी से आप लोग जो है सिलेबस हासिल करके इसकी जो है जितना टाइम अवेलेबल, आप लोग ये देखना है कि कितना टाइम अवेलेबल है आप लोगों को, उतने टाइम में जो है ये सिलेबस खत्म करने की कोशिश करना चाहिए. जिस तरह एमसेट के लिए आप लोग तैयारी करते हैं इंटर के साथ, उसी तरह जो है यूपीएससी के लिए अभी से आप लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ पढ़नी चाहिए. ये टिप्स है फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू आईएएस, जो बनना चाहता उनके लिए, एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स है ये. स्टार्ट रीडिंग 1 or 2 न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड बेस्ट इज हिंदी न्यूज़पेपर. हिंदी न्यूज़पेपर में जो है आपको न्यूज भी सही आती है और जो है आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है इससे. एंड मेक नोट ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज. जो भी आप नोट पढ़ते, जो इम्पोर्टेंट न्यूज लगती है आपको, उसकी नोट तैयार कीजिए, नोट बनाने की आदत डालिए आप लोग. एंड डिसाइड व्हेन डू यू वांट टू टेक अप यूपीएससी एग्जाम. जैसा कि अगर आप लोग अभी क्लास 8 में हैं तो आपको यूपीएससी एग्जाम करने में कितने साल है? 2 साल आपको 10th करने में होते हैं, उसके बाद में 2 साल आपका इंटरमीडिएट, उसके बाद मिनिमम 3 साल फॉर ग्रेजुएशन. दैट मीन्स अभी आपके पास 7 साल का टाइम है. तो जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिसिन करते हैं उनके पास और 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो बच्चों ये अगर एग्जाम इतने साल का है तो आप लोग अभी से सिलेबस हासिल करके इसकी तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ताकि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करें एग्जाम दे सके आप लोग. Make habit of putting in time for study on a daily and weekly basis, and follow the books, collect the books from right now and start reading them, and especially Constitution of India. All of you should know what is the Constitution of India and what is the geography of, and general reading में यही मालूम करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में डेली क्या इवेंट्स हो रहे हैं और इवेंट पे क्या इम्पैक्ट है ऑन द लाइफ. And watch the videos of IAS toppers and their advices on the YouTube. YouTube आपके लिए फ्री एजुकेशन का इदारा है जिसमें आपको हर किस्म की एजुकेशन मिलती है, आपके सब्जेक्ट के बारे में भी और आईएएस टॉपर्स के बारे में भी, आईएएस कैसा करना, कैसे पास होना, इसके बारे में सारे एडवाइजेस आपको जो है यूट्यूब पर मिलते हैं. तो इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए आजकल, क्योंकि सब एंड ये इदारे हैं जो यूपीएससी का एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन. आपके घर बैठे बैठे आप लोग जो है आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. If you decide to change, that becomes. आज जो आप लोग डिसाइड करेंगे ना बच्चों, ये आपकी जिंदगी बनने वाली है. आज ये वेबिनार आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो सकता है. अगर आप लोग डिसाइड करें कि आप जिंदगी में कुछ बनना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप वो कुछ बन सकते हैं. एक नूरुल हसन आईपीएस हैं, उन्होंने ये फ्री एकेडमी HTTP जो दिख रहा है नीचे, freeacademy.org, ये वेबसाइट पे अगर आप जाए तो
यूपीएससी तैयारी के लिए क्या क्या किताबें चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, वो सारा इसमें अवेलेबल है। तो आप ये वेबसाइट को विजिट करके यहाँ से जो है सारी चीजें हासिल करके कर सकते हैं। बच्चों अक्सर ये बोलते हैं कि हमारी किस्मत की लकीर है, हमारे हाथ का लकीर है, और ये बदलती नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो सकती है अगर आप मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें। तो फाइनल वर्ड इज योर डिसीजन टुडे डिटरमिन्स योर फ्यूचर। आज आप लोग जो डिसाइड करेंगे ये आपका फ्यूचर होगा। इट इज इन योर हैंड, वट एवर यू डिसाइड एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली, इट विल मेक योर लाइफ। डोंट बिलीव दैट वी आर इन दिस स्टेट बिकॉज ऑफ अवर फेथ। अक्सर ये बोलते हैं कि मेरे किस्मत की वजह से मैं ऐसा हूँ, बिल्कुल गलत है। जो आदमी हार्ड वर्क करता और अल्लाह से दुआ करता उसकी किस्मत बदल सकती है। अल्लाह ताला ये बोल रहा। नेपोलियन हिल एक फेमस राइटर है, उसने क्या कहा पता है आपको? वट एवर ए मैन्स माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी हर आदमी जो कुछ भी वो सोच सकता है, जो कुछ भी वो इमेजिन कर सकता है, जो कुछ भी वो ड्रीम देखता है, वो जो है वो हासिल कर सकता है अगर उसके लिए वो कोशिश करे। तो बच्चों आप लोगों के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ जिंदगी ओपन है आप लोगों के लिए। एंड अगर आप गरीब रहे, ये तो जो ये आपकी नादानी है, आपकी काहली है। अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह एवरीबॉडी ऑफ कैन बिकम करोड़पति। इंशाल्लाह आप लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी सोसाइटी, अपने माँ बाप के लिए जो है असद बन सकते हैं। आप लोग अपने नेशन के लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं। ट्राई टू डेवलप समथिंग। आप लोग जो है साइंसेस में इनोवेशन कीजिए। आप लोग हर चीज नई चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, कई एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चों ने इजादात किए हैं। आपको अभी से इजाद करने की, इनोवेशन करने की, जो हम इजाद करते हैं उसकी रिसर्च होती है। ये आज के लिए आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए प्लीज। टुडे आई लाइक टू गिव यू टास्क। प्लीज राइट डाउन ऑन ए पेपर व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। आप एवरीबॉडी ऑफ यू प्लीज राइट डाउन ऑन ए पेपर व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, इन योर लाइफ। Okay, how much you want to earn per month, how much useful you want to become for yourself, your parents, your community and nation। ये आप लोग आज ये पेपर पे लिखिए और लिख के अपने पास रखिए और हमेशा उसको देखते रहिए और उसको फॉलो कीजिए। then only you will achieve it, that becomes your goal actually। लिखिए पेपर पे और उसके लिए काम कीजिए आप लोग। और इसमें जितने लोग आपको इसमें अगर आप कोई बड़ा टास्क सीख लिया, आपको अभी मालूम नहीं है कि उसको कैसे पहुंचना है, अगर आप ये बताएं तो लोग जो जानने वाले हैं वो आप लोगों को बताएंगे। और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो वो चीज हासिल कर चुके हैं, तो आपको लोग गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको रास्ता इजी हो जाएगा। तो ये बच्चे, ये मेरा कांटेक्ट है। अगर आपको और कुछ मालूमात चाहिए और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन अप्रोच मी on this email or a WhatsApp group, or you can approach Mr. Bashir Saab, or through your school you can come to us to give you any possible guidance required. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Very, very, very done, sir. On time, we are following very beautifully the timings. Alhamdulillah. The roots of education are bitter, but the fruits are sweet. You have been listening, बच्चों। आपके सामने जितने लोग भी हैं ना बेटा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, काफी तजुर्बेकार हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं सिर्फ आपकी जिंदगियां बदलने के लिए। सर जो है ना, सईदुद्दीन साहब, ये जो फाउंडर हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के, और इस तरह हम वेबिनार देते हुए हजारों बच्चों की जिंदगियों में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह दे विल प्रूव देमसेल्फ। नाउ द टाइम हैज कम टू रेज योर हैंड। You can ask the questions now. बेटा आप खामोशी के साथ ध्यान से सुनते आए। Really, I'll appreciate your discipline and thank you the management who arranged you systematically and made you sit quietly. Thank you very much, Sakina ma'am and the team. Now the time has come to raise your hand. आपके दिमाग में जो भी questions आ रहे हैं ना बेटा, आप पूछ सकते हैं, सर आपको जवाब देंगे। कुछ पूछना है बेटा? Anyone wants to ask? Yeah. Sir, there is a question from student. Yes, yes. I am very confused to choose the aims. Everyone is telling take this, take that. So what should I take? No. Many students and then people are suggesting her to take that and this. She is confusing which way to go, what to select, how to select. बच्चों everybody will suggest everything according to their experience। बच्चों लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, there are so many options available for students now। अभी आप अक्सर इंडियन बच्चों को पूछ
इन बच्चों को, तो आप बच्चे लोग आगे बढ़ के क्या करना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मेडिसिन करना चाह रहे हैं, इनको दोनों के बारे में ज्यादा मालूमात है। दूसरे जो प्रोफेशन है, जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो है ना, जैसा मिलिट्री के जॉब है, और कई और दूसरे इदारे जैसा लॉयर बनना है, इसके बारे में नहीं सोचते। और उसी तरह सिविल सर्विसेज भी एक प्रोफेशन है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिसके बारे में आपको अभी से कोशिश करना चाहिए। रास्ते कई रहते, आपको चूज करना चाहिए कि हमको मेरे को किस रास्ते पे जाना है। ये आपके ख्वाहिश पे, आपकी सलाहियत पे, आपके इंटरेस्ट पे मुबस्सिर होगा इस पे। तो आप लोगों को चूज करना है। ये लोग जो है कोई भी सजेस्ट करते रहेंगे, कुछ भी रास्ते बताते रहेंगे, लेकिन हर रास्ते पे आप नहीं जा सकते। आपको एक ही रास्ते पे जाना है, तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हम आपको ये बता रहे आज जो है ना, कैरियर ऑप्शंस आपको बता रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। और इंटर के बाद क्या कर सकते हैं वो भी बताया मैं आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस लेवल पे, आप जो स्कूल लेवल पे है, आपके लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अवेलेबल है, पहले उसमें से NTSC एग्जाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है, इसके बारे में मालूमात करके इसमें अपियर हो जाइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो क्लासेस जो होते हैं, रोज जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनमें जो है आपको महारत हासिल करना चाहिए, उनको अच्छी तरह याद रखिए। यही आपको UPSC में आने वाला है। क्लास 6 से जो पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको UPSC में पूछे जा सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। तो इनको मत भूलिए, इनको नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये सारे सब्जेक्ट को अच्छा पढ़िए, और यही आपके लिए कामयाबी का रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। Any other questions? Yes, Boys? sir. Sir, we are in 10th, but how can we prepare UPS exam preparation? UPSC का एग्जाम जो है बच्चों, मैंने जैसा कि बताया आपको, उसका सिलेबस हासिल करनी चाहिए अभी आपको, और आपको देखना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम अवेलेबल है UPSC एग्जाम देने के लिए। मैंने जैसा बताया कि UPSC एग्जाम देने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स की होना चाहिए और ग्रेजुएशन खत्म होना चाहिए। तो अब आप अभी से प्लान कीजिए आपको ग्रेजुएशन करने में कितने साल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है रोजमर्रा पे जो है आप लोग अखबार पढ़नी चाहिए, और अपनी इंग्लिश को अच्छी करनी चाहिए। आपके सॉफ्ट स्किल्स को तैयारी करनी, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आप लोगों के पढ़ाई के अलावा जो स्किल्स होते हैं वो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसा कि आपको अच्छी तरह बातचीत करने का सलीका, आपकी अच्छी इंग्लिश, आपके बोलचाल का तरीका, आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आपको अच्छी राइटिंग आना चाहिए। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये सारी चीजें भी आपको along with your studies you have to develop. You should always participate in the competitive exams, and you should pass and succeed in that. So that will prepare you for the UPSC exam. I think this answers your question, please. Yeah, thank you. And anyhow, we are maintaining the time. We have lost 5 minutes. Ladies and gentlemen, my dear students, you have been listening our speakers in a very good manner, and you raised beautiful questions also. Alhamdulillah. Due to some technical problem, it is not big issue actually, but a small technical problem, we are not able to take many questions from your side. And I already forwarded our feedback form to ma'am, Sakina ma'am. You can get the feedback form and write your doubts and answers in that and send back to us. Then only we will be able to help you. Okay, thank you. And I think now the time has come to turn up our last session of the webinar, that is vote of thanks. I request Ma'am Sakina Begum to present vote of thanks. Yeah. First of all, good evening to respected principals, sir, ma'am, and speakers. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here, online and offline. I would like to thank to all the speakers who have shown a keen interest towards all the students to guide them for their careers, and also shows many options to carry on for the studies in future. Because of this seminar, it is not only create awareness among civil services, but it also helps them to form their aim in life. Students have many courses to opt, but they don't have any, ideas and different opportunities. But no awareness, even though because of no awareness, they have wanted to gain something in life, like fame,
and some position. But due to some reasons and no awareness, they are unable to. Because of Indian Stars Grammar High School and Civil Service Academy, I really thanks to both of them for giving this opportunity to our students to understand about the civil services exams and importance of civil services and other competitive exams to pursue in future. I'm very much thankful all the speakers who were there for giving their valuable time for Indian Stars Grammar High School students and making them understand the importance of civil services. I really appreciate the Civil Service Academies by giving a big round of applause for them. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. We thank the management of Indian Stars Grammar School for their cooperation and arranging this webinar. Thank you very much. Okay, before we wind up the program, I want to read out a small poem by Rabindranath Tagore before we say good luck and goodbye. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever wide-awing thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Amin. Jazakallah khair.